Go. Hello friends, my name is Mayank Rai and I'm your Orphiky mentor. As you guys would be updated, the date sheet for class 10th is out. So let us have a look on the date sheet once. So, for those who have the first exam is English, you have it on the 6th of May. The next exam that you will be having is Hindi अगर आपने 10th में हिंदी choose की है. And the next big exam that I see is mathematics that will be on 21st May. Now, 4 दिन का गैप आपको यहाँ मिल रहा है, long gap of 10 days. कैसे मैनेज करें सर हम ये? So, Nitesh sir is here to help you with time management and prioritization of subjects. So friends, it's time for Nitesh sir to help you out. Hello, welcome all the students to this Orphiky Nurture series of lectures. I'm really thankful to all of you. एक बहुत ही overwhelming response मिला है. Orphiky On Demand is one of its initiative जहाँ पे हम students के doubts पूछते हैं, students को ऐसे concepts के बारे में पूछते हैं जो उन्हें नहीं समझ में आ रहे हैं. And we receive these demands on our YouTube comments, Instagram DMs और हम इन demands को पिक करके अपने वीक में वीडियोस बनाते हैं. We received a lot of demands. Thank you so much everybody for this. And out of all these demands, there was one particular demand that I thought has to be entertained. जैसे कि हमको पता है बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं. बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर वी हैव 3 months with us. हम कैसे इस टाइम को बेस्ट ऑप्टिमाइज करें और यूज करें. आई थैंक स्वाति फॉर दिस फॉर आस्किंग दिस टू अस. सर टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे एक सेशन रखिए एंड एंटरटेनिंग स्वाति's डिमांड. दिस इज व्हाट वी हैव कम अप विथ. मैं आज आपको एक रामबाण अप्रोच देने वाला हूं जो 3 स्टेप का ही अप्रोच है. अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू सेड इट टिल डेट. The first step that we want to talk about today is how do we decide on measurable goals. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स मेरे जैसे हैं, पर से मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट शायद नहीं था. I was probably one of the most average kids in class. मैं रोज बहुत मेहनत करता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैंने बहुत अच्छा कवरेज नहीं किया है चैप्टर्स या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. One major issue that I have realized in due course of time is probably we do not measure our goals. So the first step that we are going to talk about is how do we set measurable goals. The second step that we are going to talk about is prioritize. ठीक है, prioritize एक बहुत ही important step है जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ in my upcoming slides. The third step that we are going to talk about, how do we actually implement the plan. ठीक है, the first 2 steps talk about the plan part of it. The third step talks about the implementation part of it. And these 3 steps when followed can actually lead to an amazing revision program that we might design at the end of the session. Let us talk about the first step. Measurable goals decide करना एक बहुत ही difficult काम नहीं होता है. ठीक है, एक बहुत simple formula मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा है. All you have to do is you have to take total tasks. So this slide and for that matter this video is not just relevant to 10th standard kids. ये हर स्टूडेंट के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने लिए टास्क मैनेज करना चाहता है, ये उसके लिए रेलिवेंट है. The first thing that you have to do is find out the total tasks that you're expected to perform. These tasks can be it can be a to-do list, it can be a list of chapters, it can be a list of concepts. But आपको सारे चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स जो भी आपको पढ़ने हैं अल्टीमेटली परफॉर्म करने के लिए उन सबका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज मोर और लेस अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टेप. यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टोटल टास्क्स एंड चैप्टर्स एंड देन डिवाइड दिस लिस्ट विद द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव विद यू. आपके पास कितने दिन है आपके हाथ में, उससे आपको डिवाइड करना रहेगा. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आवर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस. Say for example we have 15 chapters in mathematics, we have 16 chapters in science, and roughly we have say 15 and 20 chapters in other subjects. So roughly the calculation is 81 chapters अपने को prepare करने हैं. 81 chapters to be done before we complete the whole syllabus. This 81 is basically our total tasks. Now we see we have February, March and April with us since the board examination is anyways going to happen in May. 3 महीने हैं, मतलब हम बहुत सिंपली नीचे जाके 90 डेज लिख देंगे जो कि गलत होगा बिकॉज द एक्चुअल नंबर ऑफ अवेलेबल डेज इज नॉट 90. ध्यान से देखिएगा इस बात को. 90 डेज में से वी वांट टू सबट्रैक्ट द वीकेंड्स. वी नो कि हम बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से 6 days अ वीक पढ़ना चाहेंगे एंड प्रोबेबली आई हैव टू गेट रिड ऑफ 12 वीकेंड्स. एंड उसके साथ हम बहुत ही फेस्टिवल में एंजॉय करने वाले बच्चे हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. अगर आप भी मेरे जैसे हो, बहुत एंजॉय करते हो, you would probably want to say reduce 10 more days.
and you will find that it is roughly around 68 to 70 days that you have with you, and this is the realistic calculation that we'll have to make. So we will have to do say 80 chapters in 60 days, which shows कि हमको एक दिन में एक से ज्यादा चैप्टर करना पड़ेगा in order to complete my syllabus. Now this is called as a measurable goal. So the first step is now clear. Take the number of chapters and concepts that you have, divide it with the number of days that you have, and you will receive the expected speed with which you should prepare. So I hope that part is clear, the first step, measurable goals. Now the point is, ये मेजरेबल गोल्स में से अगर मैं देखूंगा, अगर हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करें या फिर कुछ ऐसे टास्क की बात करें, सर मुझे एक स्क्रिप्ट भी लिखनी है, मुझे एक ब्लॉग भी लिखना है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं करता हूं. इट इज नॉट जस्ट एजुकेशन दैट डिफाइंस माय टाइम. तो मेरे को दिखेगा कि मेरे पास 150 से 200 टास्क हो गए, पर अभी भी मेरे पास दिन तो 68 ही है. मतलब मेरे को एक दिन में 2 से 3 टास्क करने का. सर दैट्स वेयर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, व्हिच इज प्रायोरिटाइजेशन. Now it is very important to note, Eisenhower, one of the ex-United States personality, president for that matter, in one of his speeches talked about this priority matrix. We call this as Eisenhower prioritization matrix. ये matrix क्या करता है? अब हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं. इन टास्क को अब हम 2 चीजों में तोलेंगे. फर्स्ट, हाउ इंपॉर्टेंट दिस टास्क इज. सेकेंड, हाउ अर्जेंट दिस टास्क इज. तो जो लिस्ट आपने बनाई थी, उस लिस्ट के आगे अब आपको 2 कॉलम ऐड करने हैं, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का. अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अर्जेंट है कि नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ डू वी डिसाइड कि वो टास्क इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है? जनरली टास्क लाइक जिसकी टेस्ट अभी आने वाली है या फिर जिसके प्रीलिम्स अभी आने वाली है, जिसकी एग्जाम अभी आने वाली है, वो टास्क जनरली बन जाएंगे अर्जेंट, बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम we want them to happen very quickly. ये हमारे urgent task बन जाएंगे. On the same side, there are tasks which we already know. ये चैप्टर सर बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, इस चैप्टर में से सर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे हमको इंपॉर्टेंस प्री डिफाइंड है. ये इंपॉर्टेंस अलग अलग तरह से आप देख सकते हैं. इट कैन बी से इट इज अ कैश मार्क्स चैप्टर, इट कैन बी सेड कि उस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है, या फिर आपको आपके टीचर या एकेडमिशियन ने बताया है कि वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम इस तरह से उस चैप्टर या फिर उस टास्क को इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नोट कर सकते हैं. तो अगर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और वो अर्जेंट भी है, इट विल सिंपली बी प्लेस्ड इनटू द फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज डू, और वी कॉल इट डू इट नाउ. ऐसे ही अगर कोई टास्क है जो कि इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, उसको मैं स्केड्यूल करना चाहूंगा. वी कैन स्केड्यूल इट लेटर, क्योंकि वो करना तो है ही है, लेकिन वो अभी तुरंत नहीं करना है. सो दैट कैन बी स्केड्यूल्ड लेटर एंड हेंस वी कॉल इट डिसाइड. ऐसे कुछ टास्क है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है. सपोज कि आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपका एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन वो करना ही है. आप चाहे तो वो टास्क डेलीगेट कर सकते हैं. या फिर एक सिंपल एग्जांपल अगर दूं कि एक वोकैबुलरी का टेस्ट है, आपने वो वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ रखे थे, आपका एक सिबलिंग है, आप लंच करने बैठे हैं और आप बोल रहे हो कि बेटा ये ना फटाफट 10 वर्ड रीड आउट करके बताओ. आप यहाँ पे मदद ले सकते हैं, लोगों की डेलीगेट कर सकते हैं, सो दैट दीज टास्क्स कैन बी एक्चुअली कंप्लीटेड इन टाइम फ्रेम एंड दे आर आल्सो दे आर आल्सो मेट. उनके डेडलाइन भी मीट हो जाएगा. इन टास्क को आप डेलीगेट कर सकते हैं. एंड द फोर्थ कैटेगरी आर द टास्क्स व्हिच यू हैव टू डिलीट और एलिमिनेट, एंड दैट इज वेयर प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स टेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट. बहुत वीडियो के सर एक काउंटर स्ट्राइक का सीरीज आया है, वो खेलना है सर, बहुत सारी चीजें जो करनी है, ऐसे सब टास्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है. नॉट टू से कि मैं उसको हमेशा एलिमिनेट करूंगा, रादर मैं उसको करना चाहूंगा आफ्टर आई एम डन विद 1, 2, 3 सेट ऑफ टास्क, एंड देन प्रोबेबली आई कैन शिफ्ट टू द फोर्थ टास्क. तो जब आप आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे अपने टास्क में, तो आपको डेफिनेटली बेटर आइडिया आ जाएगा हाउ डू वी प्रायोरिटाइज थिंग्स. दिस इज हाउ प्रायोरिटाइजेशन टेक्स प्लेस. Next and the last important thing, rather last important category is breaking down this plan. तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दूं, हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने सारे टास्क्स और सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए थे. उसके बाद हमने इस लिस्ट के आगे कॉलम्स ऐड किया कि ये अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट है. तो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों होगा, दैट इज प्रायोरिटी 1. जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एक और प्रायोरिटी होगी. ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ हाउ डज आइजनहावर मैट्रिक्स अप्लाई, आई विल पोस्ट अ डॉक्यूमेंट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जहां पे आप समझ सकते हो कि कैसे प्रायोरिटाइजेशन करना है. ठीक है, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क इज, ये प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद इसको मैं डेली ब्रेक डाउन कैसे करूं.
The breaking down of plan has to be done now in the weekly basis. Many researchers have said that there are two types of goals in a person's life. There are long-term goals and there are short-term goals. Long-term goals generally हम human beings follow करने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं because we tend to forget these goals. So what are the goals that we should keep? We should keep short-term goals. Apparently ये short-term goals ही हैं जो आगे जाके आपको long-term goal achieve करवाएंगे. So ये जो हमने इतना बड़ा मैमथ टास्क उठाया था ना बहुत सारे चैप्टर्स की लिस्ट का, अब उस टास्क को हम तोड़ेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने का प्लान अगर हम पकड़ रहे हैं, तो ये जो 3 महीने में हमने सारे टास्क की लिस्ट बनाई, we will break that down into further further points. तो ये था आपकी टोटल चैप्टर टास्क की लिस्ट. इसको मैं I'll break it into weekly tasks. तो सिंपल है, we have 3 months and we have 12 weeks. मैं इसको वीकली डिवाइड कर दूंगा. नाउ आई विल हैव 12 सेपरेट सेक्शंस. ये 12 चीजें मेरे को धीरे धीरे करके अचीव करनी है ताकि मेरा 3 महीने का ग्रैंड गोल अचीव हो जाए. और फाइनली इसी वीकली चैप्टर या टास्क को मैं एक डेली बेसिस पे भी डिवाइड कर सकता हूं. सो दिस डिवीजन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डाउन द टास्क फ्रॉम 3 month to a week to a day's time frame. After breaking down the task, your schedule will look roughly like this. Now, this is not to be taken as a reference schedule. This is just a sample. तो जैसे कि जो चीज ये आप देख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, जो चीज मैं रोज करने वाला हूं, आई कैन से रीड न्यूज़पेपर एंड रिवाइज फॉर्मूलाज. दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू एवरी डे. इसको मैं एवरी डे कॉलम में इंक्लूड कर दूं. अगर मैंने देखा था कि सर मेरे पास 140 टास्क थे और 60 दिन थे, मतलब मेरे को दिन में 2 चैप्टर तो मिनिमम करने पड़ेंगे, और ये 2 चैप्टर्स की फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई मेरे को चैप्टर 1 मैथमेटिक्स करना है और मेरे को चैप्टर 1 सोशल साइंस करना है. अलॉन्ग विद दैट मेरे को असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है क्योंकि वो मैंने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में डाल रखा है. तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाली चीज है उनको पहले प्लेस करें और फिर बाद प्रायोरिटी वाली चीज को बाद प्लेस करें. इस तरह से आपको कुछ वीकली शेड्यूल मिलेगा. इंपॉर्टेंस क्या है इस वीकली शेड्यूल का? सबसे पहली बात, ये वीकली शेड्यूल आपने खुद बनाया है. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड, ये वीकली शेड्यूल होने के बाद नाउ यू नो कि मेरे को कितनी चीजें अकम्प्लिश करनी है. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यू फील के सर मैं और भी कर सकता था, मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता हुआ दिख रहा. अब आपको पता है दिस इज कॉल्ड डेडलाइन ड्रिवन एफर्ट्स. तो क्योंकि हमने डेडलाइन ड्रिवन एफर्ट्स प्लेस किए हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस बिकम्स ऑटोमेटिकली हाई. ठीक है, सो दिस इज हाउ you apply the prioritization matrix and the list of tasks into daily or weekly schedules. एक बार वीकली शेड्यूल बना दिया आपने, इंप्लीमेंट कर दिया, अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको लिखा था कि चैप्टर 1 करें, बट व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्विंग 1 चैप्टर? एक चैप्टर सॉल्व करना है तो हम सबको पता चल गया, उस चैप्टर के अंदर क्या करना है हमको. सो आई जस्ट गिवन यू अ स्मॉल अप्रोच कि जब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ ये मैं कैसे मानूं. So for that we can follow these 5 steps. सबसे पहले मैं उस लेक्चर को व्यू करूं. That lecture can be a video lecture, that can be an offline lecture जो आप आपके स्कूल या ट्यूशंस में अटेंड कर रहे हैं. That can be anything. That is your first contact to that concept. उस चीज को आप अटेंड करें. Immediately after that, you have to revise the lecture or probably look at the summary of that lecture. आपने कुछ नोट्स लिखे होंगे या फिर हो सकता है उस लेक्चर का वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा. आपको तुरंत उसका रिवीजन कर लेना है, उसकी समरी देख लेनी है. दैट इज कंप्लीशन ऑफ सेकंड स्टेप. इसके तुरंत बाद मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्विंग पे नहीं जाऊंगा, मैं रादर सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे जाऊंगा जिसके आंसर्स और क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं. विद दिस आई विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड और इंप्लीमेंट द थियरी इनटू एप्लीकेशन. ठीक है, थियरी को एप्लीकेशन में डालने के लिए हमको सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे. आफ्टर लुकिंग एट सॉल्व्ड एग्जांपल्स, नाउ आई कैन जंप टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट. और जैसे ही मैं एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जाता हूं उसके बाद मुझे तुरंत एक छोटा सा चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेना चाहिए to actually understand whether I was good in that particular chapter or not. Okay, so chapter wise test will ensure कि मैंने उस चैप्टर में कितना अच्छा परफॉर्म किया है. And here I would actually want to talk about this concept called quality over quantity. Generally हम ऐसी बातें करते हैं कि सर वो मेरा दोस्त है वो 6 घंटे पढ़ लेता है, सर मैं सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाता हूं, तो मैं कम मेहनत कर रहा हूं क्या? अगर आप मेरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दें, एंड दैट इज व्हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो ये 5 चीजें जब आप करेंगे एक चैप्टर से रिलेटेड, तब आप मानेंगे कि मेरा एक चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है. ठीक है, दैट इज व्हाई डेडलाइंस आर रियली इंपॉर्टेंट. तो देखो, अगर हमने शेड्यूल में ये लिखा था कि मेरे को एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं, उसका मतलब सिर्फ 2 चैप्टर सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन उन 2 चैप्टर में इंडिविजुअली ये 5 टास्क करने हैं. एंड दैट इज व्हाई डेडलाइन रखना या फिर क्लॉक रखना अपने शेड्यूल पे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को पता चलेगा कि सर मेरे को इतने घंटे में इतनी चीजें करनी है, तो मेरे को कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी.
So that is why chapter preparation flow is important. Now we have talked about हमको कितना कंप्लीट करना है. हमने ये तो बात नहीं की है सर कैसे. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बेसिक इश्यूज आते हैं. इनफैक्ट मैं खुद का आई वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से बहुत लेजी था मैं, एक बहुत ही पॉपुलर प्रोक्रास्टिनेटर था मैं अपने क्लास का. एंड ऐसी क्या चीजें थी जो मैंने इंप्लीमेंट की ताकि मेरा प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो गया इन माय 10th and 12th standard. What I did was I followed some basic advices, and the advices are as follows. The first thing, you can take the rule of 1 hour and 5 minutes preparation. तो यहाँ पे हम 1 घंटे के लिए पढ़ना चाहेंगे और 5 मिनट के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. इस ब्रेक में आप बात करिए, पुशअप्स करिए, थोड़ा घूम के आइए, राउंड लीजिए, स्ट्रेच योरसेल्फ. ये 5 मिनट की ब्रेक में आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू गो बैक टू प्रिपरेशन अगेन. इट इज प्रूवन दैट हम छोटे छोटे ब्रेक्स में प्रिपेयर करते हैं, आवर रिटेंशन इज हायर. ठीक है, अब मैं सर पूरे दिन को कैसे डिवाइड करूं? क्या मैं 1-1 घंटा पढ़ता रहूं? नो, प्रोबेबली आई वुड से what you can do is you can divide the day into the sets of 3 different hours. ठीक है, so 3 hours का एक सेट आप ले ले. ऐसे करके आप 3 अलग अलग सेट में आराम से दिन के 9 घंटे पढ़ सकते हैं. what do I say here? Accommodate these around your lunch and food breaks. ठीक है, so generally if I say you utilize your morning, आप उठे सुबह को 5 बजे, आप 3 घंटे का एक स्ट्रेच कंप्लीट कर लें. इट्स 8:15 AM, 8:30 AM, you can have your breakfast. And then वो अपने आप एक आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा. Immediately go back to your studying at 9 AM. And then again say spend 3 more hours till 12. You will again have a lunch break. So this 3 hour of preparation is a very, very helpful rule while you divide your day. Finally, I would say, again, I would repeat this point. Please track the quality of your preparation over the quantity of your preparation. सिर्फ ऐसा ना बोले कि सर मैंने तो 6 घंटे पढ़ लिया, मेरा टास्क हो गया. नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेजरेबल गोल्स बताए, प्रायोरिटाइजेशन बताया, तो मतलब मेरे को उतना कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरा ये मेथड इफेक्टिव होगा. अब उतना कंप्लीट करने के अगर आप 4 घंटे में कर रहे हैं या फिर कोई 5 घंटे में कर रहा है, इट डज नॉट मैटर. इट इज अबाउट द कंप्लीशन ऑफ टास्क्स. There is one beautiful concept that I would like to talk about here. This concept is called as delayed gratification. ये हम सबके साथ बचपन में होता ही था. हमारे पेरेंट्स हमको बोलते एक काम करो, चलो एक छोटा सा 1 मिनट का डांस करके दिखाओ, हम तुम्हें एक चॉकलेट देंगे. ठीक है, हम शायद डांस नहीं करना चाहते थे, फिर भी उस चॉकलेट के लिए हम वो डांस कर लेते थे. डिलेड ग्रेटिफिकेशन या फिर इंसेंटिवाइजेशन इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है. हम जो चीज इंजॉय करते हैं ना, वो हमको हमेशा लास्ट प्लेस करनी चाहिए. सपोज मेरे को अभी 2 चैप्टर सॉल्व करने हैं, दूसरा चैप्टर मेरा फेवरेट है, तो मैं पहले कौन सा सॉल्व करूं? वो जो मेरा फेवरेट नहीं है या वो जो फेवरेट है? हमारी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो फेवरेट चैप्टर पहले लें, बट नो, साइकोलॉजी सेज अदरवाइज. हमको वो चैप्टर जिसमें मुझे बहुत मजा आता है वो बाद के लिए प्लेस करना चाहिए, क्योंकि उसके मोटिवेशन के चक्कर में मैं पहले के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लूंगा. This is not a very, I would say, complicated thing to do, but just because अब आपको पता चल गया है, अब आप अप्लाई कर पाएंगे. जो चीजें आपकी फेवरेट है, जो चीजें आप इंजॉय करते हो, जिसको हम रिवॉर्ड्स कहते हैं, उन रिवॉर्ड्स को ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन प्लान करें. तो डिले करें उस रिवॉर्ड को, ताकि वो रिवॉर्ड मिलने तक आप बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर ले. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड विद दिस आई वुड गिव यू अ मंत्रा. जनरली द मंत्रा इज वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर. आई वुड एक्चुअली मॉडिफाई दिस एंड आई विल से हार्ड या हार्डर की बात नहीं करते हैं. We would say work first and party later, because the incentive of partying and incentive of festive, thought actually helps us put more efforts during our preparation. So work first, party later. That is what we would like to believe here. What are good studying habits? तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्या करें, कैसे करें, किस तरह से उसको ब्रेक करें, पर कौन सी हैबिट्स है जो मुझे फॉलो करनी पड़ेंगी. ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा देयर इज अ 21 डे रूल. अगर आप एक चीज को 21 बार रिपीट करें, यू विल एंड अप बिल्डिंग अ हैबिट आउट ऑफ इट. मैं आपको ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप धीरे धीरे करके इनकलकेट करते हैं, योर प्रिपरेशन कंसंट्रेशन विल इंप्रूव. द फर्स्ट हैबिट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज क्लीन वर्क प्लेस. जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि वो जगह क्लीन है. क्लीन वर्क प्लेस एक्चुअली रेजोनेट्स विद योर माइंड. जितनी क्लैरिटी आपको वर्क प्लेस में दिखती है, उतनी ही क्लैरिटी आपके माइंड में रहती है. दैट इज व्हाट वी वुड ऑल लाइक टू बिलीव. So please clean your workplace wherever you are studying. Second, engage yourself in active learning. सिर्फ रटने से या फिर सिर्फ देखने से प्रिपरेशन नहीं होगी. Probably आप उस चीज को रीड करें, अपने आप के साथ बात करें. अच्छा, तो अभी तक मैंने ये चीज कर लिया, अच्छा ये कर लिया, अच्छा मेरी इतनी चीज हो गई. This is called active learning. You actually engage yourself in the process of learning. If you inculcate this in your preparation, you will be really good. अच्छा, ये सिर्फ बोलने से हो जाएगा क्या? जी नहीं. जब आप जहां भी आप पढ़ने बैठे, अब वहां पे बड़े बड़े तरह से लिख के पोस्ट कर दे कि मेरे को आज एक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस करनी है. जैसे आप एक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस करेंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एट दैट.
The third thing that I would suggest is worry hour. Now this is a very interesting technique. अगर आपने ऑब्जर्व किया है, हमारा मेजॉरिटी टाइम ऑफ आवर डे गेट स्पेंट इन वरिंग कि यार ये कैसे होगा, ये कब होगा, कैसे करेंगे इसको. जब भी आपको एक वरी का थॉट आए, मैं चाहूंगा कि आप एक दिन का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर ले जहां पे आपको चिंता करनी है. फॉर एग्जांपल 7:30 to 8 PM. मेरे को जब भी वरी वाला थॉट आएगा ना, मैं उसको 7:30 बजे सोचूंगा, ऐसा सोच के मैं उसको वहां से हटा दूं. I would say this method actually decreases a lot of your worries. ठीक है, क्योंकि जब हम एक्चुअली 7:30 बजे बैठते हैं, हमको लगता है अरे इतनी चिंता करने की बात ही नहीं थी, हमने काफी कुछ तो कंप्लीट कर लिया है. तो दिन के लेटर पार्ट ऑफ द डे में आप आपका वरी आवर सेट करें, एंड दिस वरी आवर एक्चुअली रिड्यूस योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज फॉलो गोल्स. अभी हमने जितनी मेहनत अभी करी इस सेशन समझने के लिए, इन गोल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप डेडलाइन ड्रिवन अप्रोच नहीं लगाएंगे, ऑल ऑफ आवर एफर्ट्स गो इनटू trash. So these 4 things are the things that I would like you to actually inculcate in your preparation. एक quick recap में दे दूं हमने क्या क्या देखा. We made a list of measurable goals. We made a list of all the tasks that we had to do. फिर हमने इन tasks को prioritize किया कि कौन सा task मेरे लिए सबसे important है और कौन सा task मेरे लिए least important है, जिसको मैं eliminate कर सकता हूं. इन prioritized tasks को मैंने break किया फ्रॉम 3 मंथ और 1 ईयर टोटल टास्क को मैंने ब्रेक किया वीकली टास्क में. इन वीकली टास्क को मैंने ब्रेक किया डेली टास्क में. मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, ब्रेकिंग इट डाउन इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ शॉर्ट टर्म गोल, नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल. ठीक है, देन यू स्टार्ट डेली चेजिंग इट. ठीक है, कि ये जो मैंने डे का और वीक का बनाया, अब मैं उसको डेली और वीकली बेसिस पे चेज करूं. अब मेरे को पता है ना, क्योंकि ये छोटी लिस्ट भी तो बड़े लिस्ट में से ही बनी है इवेंचुअली. तो अगर मैं छोटी छोटी लिस्ट को चेज करता जाऊंगा तो मेरी बड़ी लिस्ट भी कंप्लीट होनी ही है किसी न किसी दिन. लास्ट इज रिवाइज वंस अ वीक. अगर आपने स्केड्यूल ध्यान से देखा था तो मैंने इसमें वीक में एक दिन रिवीजन के लिए रखा था, ताकि मैं रिकैपिचुलेट कर पाऊं, मैं एक्यूमुलेट कर पाऊं मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है. दिस विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड दिस विल आल्सो मेक यू रियलाइज कि आपने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है. एंड द लास्ट इज डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, 1 टेस्ट, 1 चैप्टर, 1 कॉन्सेप्ट, प्लीज सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज. This will actually give you a realization, a feeling of achievement. ये feeling of achievement बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका मोरल मेंटेन करने के लिए. तो छोटी छोटी चीजों पे सेलिब्रेट करना ना भूलें. Don't forget to celebrate, and since you don't forget to celebrate, also don't forget to like, subscribe and share this video. If you really like what we do, post your demands to us, send us your demands on Instagram, हमारे YouTube comments पे दें, हमारे मेल पे दें info@orfiki.com, which will be given in the description. यहाँ पे आप आपकी demands भेजें. We would like to make videos on these demands. Thank you so much for your time.